السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ پیارے بچوں، چھٹی جماعت کے مضمون جنرل سائنس کی ہم دوسرے سبق جس کا عنوان ہے جانداروں کی دنیا، اس کے سوال و جواب آج کریں گے۔ اس سبق کا پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف، نباتات اور حیوانات کے درمیان کا فرق واضح کیجیے۔ بیٹے یاد رکھیے، جب ہم فرق والے سوال کا جواب لکھتے ہیں تو اسے 2 کالم بنا کر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں میں نکات کے اعتبار سے فرق واضح کرتے ہیں۔ تو نباتات ہم نے 2 کالم بنایا، ایک میں لکھا نباتات، دوسرے میں لکھا حیوانات۔ نباتات کا پہلا فرق، پہلا نقطہ، نباتات اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، اس لیے وہ خود کفیل ہوتے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے ہمیں حیوانات میں بھی لکھنا ہے۔ حیوانات کے لیے ہم نے لکھا پہلا پوائنٹ کہ حیوانات اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے، اس لیے وہ غیر کفیل ہوتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، نباتات میں محدود حرکت دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ اپنی جگہ خود سے تبدیل نہیں کر سکتی، ہے نا؟ کیا نباتات ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں؟ خود سے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے، لیکن حرکت تو کرتے ہیں۔ جڑیں سورج کی مخالف سمت میں یعنی زمین کے اندرونی سمت میں بڑھتی ہے، اور تنا سورج کی روشنی کی سمت میں بڑھتا ہے نا؟ تو حرکت تو ہوتی ہے نباتات میں، لیکن کیا ہے کہ یہ اپنی جگہ خود سے تبدیل نہیں کر سکتی۔ حیوانات کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ حیوانات حرکت کرتے ہیں اور اپنی جگہ خود سے تبدیل کر سکتے ہیں، ہے نا؟ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تیسرا، نباتات جب تک زندہ رہتے ہیں ان میں نشو و نما جاری رہتی ہے۔ جب تک زندہ رہیں گے یہ بڑھتے رہتے ہیں، لیکن حیوانات کی نشو و نما کیسی ہوتی ہے بیٹا؟ مخصوص عرصے تک ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک مدت فکس ہوتی ہے کہ وہیں تک حیوانات کی نشو و نما ہوتی ہے، اتنے عرصے تک ہی۔ یعنی ہم اس کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے آپ، انسان کی نشو و نما یعنی ہم انسانوں کی نشو و نما عام طور پر 18 سے 21 سال کی عمر تک ہوتی ہے، اس کے بعد انسان کی نشو و نما رک جاتی، عمر بڑھتی ہے، نشو و نما رک جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا پوائنٹ، نباتات اپنے پتوں اور تنوں کے مسامات سے تنفس کا عمل انجام دیتی ہیں۔ عمل تنفس جانداروں کی خاصیت ہے نا؟ تو نباتات بھی عمل تنفس کرتے ہیں، کس کے ذریعے؟ پتوں اور تنوں کے مسامات کے ذریعے۔ ہم حیوانات کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے لیے حیوانات میں یعنی چوتھا پوائنٹ جو ہم لکھیں گے، حیوانات میں تنفس کے عمل کے لیے مخصوص تنفسی اعضاء ہوتے ہیں، جیسے انسان پھیپھڑوں کی مدد سے کرتا ہے، مچھلی گل پھڑوں کی مدد سے کرتی ہے، کیچوا جیسے حیوان وہ کیا کرتے ہیں؟ جلد کی مدد سے عمل تنفس انجام دیتے ہیں، ہے نا؟ تو حیوانات میں تنفس کا مخصوص نظام ہوتا ہے، مخصوص اعضاء ہوتے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ ہے، نباتات میں بیجوں، تنوں اور پتوں کی مدد سے افزائش نسل ہوتی ہے، اور حیوانات میں افزائش نسل یا تو انڈوں کے ذریعے ہوتی ہے یا وہ براہ راست بچے دیتے ہیں، ہے نا؟ مرغیاں انڈے دیتی ہیں، ان سے بچے نکلتے ہیں، جبکہ دوسرے جو حیوان ہیں جیسے گائے، گھوڑا، انسان، یہ کیا کرتے ہیں؟ بچے دیتے ہیں۔ تو ہم نے دونوں کا فرق اس طرح لکھ لیا، واضح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جواب آپ کو سمجھ میں آیا کس طریقے سے پوائنٹ وائز لکھنا ہے؟ اور یہ خیال رکھیے کہ دونوں کے جو پوائنٹ ہیں وہ ایک آمنے سامنے ایک جیسے چلنے چاہیے۔ چلیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، بے ہے، نباتات اور حیوانات میں پائی جانے والی یکسانیت کو واضح کیجیے۔ الف میں ہم نے فرق واضح کیا تھا،
अब हमें क्या वाज़ेह करना है, यकसानियत, यानी दोनों में एक जैसी क्या बात है। जवाब देखिए, नबातात और हैवानात दोनों ही जानदार हैं। नशोनमा, तनफ़ुस, अखराज, जवाबी अमल की सलाहियत, हरकत और अफज़ाइश नस्ल की खुसूसियात दोनों में पाई जाती हैं। नबातात और हैवानात का जिस्म खलियात से बना होता है। हैवानात और नबातात दोनों को ही ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। नबातात और हैवानात की ज़िंदगी एक मख़सूस मुद्दत के बाद ख़त्म हो जाती है, यानी उन्हें मौत आ जाती है। ठीक है, ये हो गई यकसानियत। अब जीम, नबातात की दुनिया हमें किस तरह मुफीद है। सवाल को समझ लीजिए, यानी हमें ये बताना है कि हमें नबातात से क्या फ़ायदे हासिल हैं। ठीक है, तो वो मुफीद हो जाएंगे हमारे लिए, है ना। बहुत सारे फ़ायदे हैं ना। तो देखिए जवाब कैसे लिखेंगे हम कि नबातात हमारे लिए ग़िज़ाई अशिया फ़राहम करने का काम करते हैं, जैसे अनाज, सब्ज़ी तरकारियाँ, फल वग़ैरह। कुछ नबातात अद्वियाती अहमियत रखते हैं, जैसे अडुलसा, हुरडा, बहीड़ा, शतावरी वग़ैरह। कुछ नबातात का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ सनतों में भी होता है। दरख्तों से हमें लकड़ियाँ हासिल होती हैं। नबातात से कपास और पटसन हासिल होते हैं, जो कपड़े और बोरियां बनाने में कारआमद होते हैं, है ना। इस तरह नबातात से हमारी ज़िंदगी की 3 अहम बुनियादी ज़रूरियात कौन सी हैं? ग़िज़ा, लिबास और मकानात, ये पूरी करने में मदद मिलती है। इस तरह नबातात क्या है बेटा हमारे लिए मुफीद है ना। दाल है, हैवानात की दुनिया से हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। देखिए अभी नबातात के बारे में लिखा, हैवानात के बारे में, तो हैवानात भी तो हमारे लिए बहुत मुफीद है ना, हमारे बहुत से काम आते हैं। तो हमें वही सब लिखना है जवाब में। देखिए क्या लिखेंगे हम जवाब में, हमें दूध, अंडे, गोश्त और मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया हैवानात से हासिल होती हैं। पोल्ट्री, दूध से बनी अशिया और माहीगीरी जैसे तिजारती पेशों के लिए हैवानात मुफीद हैं। बैल, घोड़े, ऊँट जैसे जानवर हमारे लिए बार बर्दारी और सवारी के काम आते हैं। बेटे बार बर्दारी यानी क्या? बोझ उठाने के। हाँ, केचुए कई फाजिल मादों की तहलील करते हैं और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा करके किसानों की मदद करते हैं। ये हमने सबक के दौरान सीखा है ना। शहद की मक्खियों से शहद और मोम, रेशम के कीड़ों से रेशम और लाख के कीड़ों से लाख दस्तयाब होती है, जो कई तरह से इंसानों के लिए मुफीद हैं, है ना। ये तमाम अशिया हमारे लिए मुफीद है। इस तरीक़े से हमें हैवानात से भी बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। जानदार किस तरह गैर जानदार से मुख्तलिफ़ हैं? तो बहुत अच्छा सवाल है कि भाई हम जानदारों में और गैर जानदारों में जो बेजान अशिया है क्या फ़र्क होता है। तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं ना हम तो इसका जवाब। देखिए कैसे लिखेंगे इसका जवाब, जानदार तनफ़ुस, नशोनमा, ग़िज़ा का इस्तेमाल, इखराज, जवाबी अमल, हरकत और अफज़ाइश नस्ल जैसे अफ़आल अंजाम देते हैं। जानदार पैदा होते हैं और एक ख़ास अरसे के बाद उन्हें मौत आ जाती है। ये तमाम अफ़आल और ख़ुसूसियात गैर जानदारों में नहीं पाई जाती हैं। इस तरह जानदार गैर जानदार से मुख्तलिफ़ होते हैं। समझ में आया? हमें जानदारों की ख़ुसूसियात बयान कर देनी है और फिर हम बता देंगे कि भाई जानदारों में ये ख़ुसूसियात पाई जाती है जबकि गैर जानदार में ये ख़ुसूसियत नहीं है ना। इस तरह ये मुख्तलिफ़ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, कौन किस उज़ू की मदद से सांस लेता है। हमें क्या बताना है, तनफ़ुसी आज़ा के मुतालिक। ठीक है, अलिफ, मछली किससे लेती है सांस? गलफड़ों की मदद से। बे, सांप फेफड़े की मदद से।
जीम सारस, ये भी फेफड़ों की मदद से। दाल केचुआ, जिल्द। हे इंसान, हम किससे लेते हैं सांस? फेफड़ों की मदद से। वाव बरगद का दरख्त, तो ये पत्तों के मसामात से। और लार्वा सुंडी जिसे कहा जाता है, वो किससे लेता है? तो बेटा उसमें तनफ्फुस सुराख होता है। ठीक है, समझ में आ गए जवाबात? सिर्फ हमें उज़ू का नाम लिखना है। तीसरा सवाल है, कौस में दिए हुए अल्फाज का इंतखाब करके खाली जगह पुर कीजिए। खाना पूरी करना है बेटा, कौसैन में दिया गया है। नीचे की तरफ देखिए आप, एकदम कौसैन में दिया हुआ है, अल्फाज दिए गए हैं। उन अल्फाज की मदद से मुनासिब अल्फाज का हमें इंतखाब करते हुए अपने बयानात को मुकम्मल करना है। अलिफ, नबातात का अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करने के अमल को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? शुआई तरकीब। तो खाली जगह में हमने शुआई तरकीब लिख दिया। बे, जिस्म में डैश गैस जज्ब करने और डैश गैस खारिज करने के अमल को तनफ्फुस कहते हैं। तो बेटा कौन सी गैस जज्ब करते हैं हम तनफ्फुस के अमल में? ऑक्सीजन। तो पहली खानापुरी में हमने लिखा ऑक्सीजन। दूसरी खाली जगह में हमें क्या लिखना है? कौन सी गैस हम खारिज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। जीम है, फासिद मादों को जिस्म से खारिज करने का अमल डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? इखराज। दाल, मुहर्रिक के जवाब में अमल की सलाहियत को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? रद्द अमल। तो खाली जगह हमने लिख दिया रद्द अमल। है, अरसे हयात के इख्तिताम पर हर जानदार को डैश आती है। क्या आती है? हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो क्या आ जाएगा? मौत। तो हमने जो खाली जगह है उसे मौत लफ्ज़ से पुर कर दिया। ठीक है, इस तरह से खाना पूरियाँ भी हो गई। आगे बढ़ते हैं। इस तरह इस पीरियड में हमने सबक नंबर 2 जानदारों की दुनिया की सिर्फ 3 सवालात किए। बाकी के सवालात हम अगले पीरियड में करेंगे। ठीक है, घर में रहिए, लॉकडाउन का ख्याल रखते हुए, अपनी हिफाजत करते हुए, कहीं बाहर आइए जाइए नहीं। और ज़रूरत के तहत ही बाहर निकलिए। अपने वालिदैन, अपने घर वालों को भी इन तमाम बातों की पाबंदी करने के लिए कहिए। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।